start. Good evening, ma'am. Good evening. So yesterday we started with the conclusion that an auditor give and talk about the various type of audit reports. Okay, for non-issuer. Yes. So first we discussed about the standard unmodified report. So what does in the standard unmodified report include? Title, Why please repeat again? Hello. standard, hello, आप standard आपकी ना unmodified. आवाज ब्रेक हो रही है. मेरी अच्छा हाँ एक हाँ. सेकंड एक सेकंड Okay, is it fine now? Yes, it is. Okay, so yesterday we discussed about the various type of audit report and opinions. So first we discussed about your unmodified opinion or unmodified reports. So unqualified opinion is basically given when everything is fair. Okay, fairly presented. So when there are no material misstatement, then an auditor can go for unqualified opinion. But when there is something issue which is related to gap or gas, which has a material effect on the financial statement, but not pervasive to the financial statement, means which is not affecting the whole financial statement. So in that case, he can go for qualified opinion. Okay. But if there is some gap issue which has a material as well as pervasive effect which is affecting the whole financial statement and making it misleading, so in that case auditor can give the adverse opinion. Whereas if there is a gas issue, means auditor is not able to gather all the evidences and which has a material as well as pervasive effect on the financial statement, then he has to give disclaimer of the opinion. Okay, so we discussed about the standard unmodified report. So talking about the standard unmodified report, so first of all we include the proper title, which is independent auditor's report. Okay, then addressee to whom the auditor is uh, addressing this report. So basically it is the entity or those charged with governance. So next there is opinion paragraph. So opinion paragraph basically include about what is this nature of the audit, what is the scope of the audit. So basically which financial statement you are going to audit and of which period. And in this case you also state your opinion in this paragraph. Okay. Next, basis for opinion paragraph, you include about the auditors, like audit is conducted in accordance with the GAS. Okay, all the relevant ethical requirement as well as relevant sources that apply to audit, such as ethical code, additional rules. So whichever the rules you are following in the audit, you have to mention in the basis for opinion paragraph. Okay. So next, key audit matters paragraph is included only when the auditor is engaged to report these matters. Otherwise, it is not included. Next, management responsibilities are mentioned. Ki what are the various responsibilities of management regarding financial statements? So they have the responsibility to prepare fairly present financial statement, as well as their responsibility regarding internal control, their responsibility regarding going concern. Next, we will mention the auditor's responsibility. So, what are the various auditor's responsibility that he has to give reasonable assurance, which is a high level assurance. Okay, so he has to do risk assessment due to fraud or error.
Okay. Yes. Okay, this other information or report on legal and regulatory requirements. So these are only included if appropriate. So when the auditor is going to give the opinion on these things, then only these paragraphs are included. Otherwise, not. At last, your auditor's signature, city, state, and date of audit report is mentioned. Okay. Yes. Next, we discussed about qualified opinion. So, when there is some material misstatement which do not have pervasive effect, then the auditor has to give his qualified opinion. Or when there is some gas issue. So, in this case, basically your report will be modified. So, this opinion will become now qualified opinion, and you has to include in your opinion section that in your opinion, except for the matter you have discussed in basis for qualified opinion section, the remaining financial statement is basically free from the misstatement. Okay. So whatever the matter you have found, you have to discussed it in basis for opinion for qualified opinion paragraph. Okay. So rest is same basically. Is it clear? So these are some of the types of qualified reports are given that in this case there is something issue related to investment. Next is there is some issue uh, due to accounting principle at variance given there is some changes in the accounting principle. Okay. And this is related to some inadequate disclosure. So more or less your report will be same. You just have to mention here and explain it in basis for qualified opinion paragraph. Okay. Huh. Okay. One more thing that if you are including key audit matter paragraph and if like you think that this is also an important like you have found some mistake in your financial statement, आपको कुछ mistake मिली कोई misstatement मिली जिसकी वजह से आप अपना opinion change कर रहे हो, तो उसे आप already यहाँ discuss कर चुके होगे, तो इसलिए उस सेम टॉपिक को आपको की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. ओके, तो की अगर जिस ऑडिट मैटर में उसके अलावा हम मेंशन करेंगे. यस उसके अलावा अगर आपको कोई की ऑडिट मैटर्स दिखते हैं तो यू कैन मेंशन इन योर की ऑडिट मैटर पैराग्राफ. इज इट क्लियर? Yes. Next is adverse opinion. So adverse opinion means when there is lot of material misstatement which is affecting the whole financial statement. So in this case, again, you have to change your title first, adverse opinion, and then basis for adverse opinion. Okay. You have to like mention here that in your respect, your whole financials are basically not fairly presented. Okay. So because of the matter you have discussed in basis of for adverse opinion section, the financial statement do not present the fairly financial position of the company. Okay. Next, basis for adverse opinion, you have to explain the matter here due to which you are going to change your opinion. Rest will be same. Okay. Yes. Okay, then disclaimer of opinion will be given when there is a scope limitation, when an auditor is not able to gather the whole audit evidences. Okay, so regarding some matter and which that matter is affecting the whole financial statement, so therefore he do not have any opinion to give, so he's giving the disclaimer of opinion. So in this case, since you have not done your audit, you have not completed your audit. Okay, so you will mention that you were engaged to audit. Okay, you have not audited but you were engaged to audit. Okay, so one of the differences there here, disclaimer of opinion, then we are engaged to audit.
or you will give your disclaimer here that you are not expressing any opinion because of the significance of matter that is explained in the basis for opinion section of our report. We have not been able to obtain sufficient appropriate audit evidences to provide a basis for an audit opinion on the financial statement. Okay. Yes. Next is basis for disclaimer of opinion. So you will explain your basis. So why are you going to give the disclaimer of opinion? So you will mention here. Then you will mention the management responsibility, then auditor responsibility. Uh, you will mention, and you will mention here that you are not able to gather the sufficient appropriate evidences. Rest of the responsibility you do not need to mention because you have not completed your audit. Okay. Okay. So this is the difference between different types of report. These are Understood. for नॉन इशूअर्स. ठीक है, ये नॉन इशूअर्स के केस में ऐसी रिपोर्ट इश्यूज की जाती है. इशूअर्स के केस में थोड़ी सी अलग आएंगी, आगे हम पढ़ेंगे. ठीक है. Okay. So next is a matter involving uncertainty is one expected to resolve at a future date, at which the conclusive audit evidence concerning its outcome would be expected to become available. So conclusive audit evidence concerning the ultimate outcome of uncertainties cannot be existed at the time of audit because the outcome and related audit evidence are prospective. So management is responsible for appropriate estimate or required to disclose in an applicable financial reporting framework. So if there are some estimates are made, so that means these estimates will be based on some future outcomes. So future outcomes will decide whether these are correct or not. So therefore you do not have any related evidences that you can gather. Okay, because it will be based on some future aspect. So in that case, your management has the responsibility to give a proper disclosure. And as an auditor, आप पढ़ चुके हो कि आप estimates के regarding कैसे testing करते हो. You will check कि management ने like proper assumptions ली हैं या नहीं, calculate proper किया है या नहीं, या और आप past के number से compare कर सकते हो. ठीक है, तो अगर you are not able to gather the sufficient evidences, again as I told you, if there is some gas issue then you can give qualified or disclaimer. It will be depend upon the pervasiveness of the matter. Okay. Yes. Or if there is a matter that involve a risk or uncertainty is not adequately disclosed. यहाँ पर डिस्क्लोज है आपका लेकिन आपको एविडेंस नहीं मिले तो देयर इज गैस इशू. लेकिन अगर डिस्क्लोज ही नहीं है प्रॉपर, सो देयर इज अ डिपार्चर फ्रॉम गैप, दैट मींस गैप इशू. सो इन दैट केस यू विल डिसाइड बिटवीन क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन. ये चीज समझ में आई, कब आप क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर के बीच में डिसाइड कर रहे हो और कब क्वालिफाइड और एडवर्स के बीच में डिसाइड कर रहे हो. हाँ, समझा. Okay. In preparing the financial statement, management estimates the outcome of certain type of future events. In some cases, the inability to make reasonable estimate may raise question about the appropriateness of accounting principle use. So if the auditor conclude that accounting principle cause the financial statement to be materially misstated, so when there is some problem in the principles, accounting principle, so that means there is a gap issue. So you have to decide between qualified versus adverse opinion. Okay. हाँ. Okay. So if the auditor found that estimate is unreasonable, so again there is gap issue. So he will decide between qualified versus adverse opinion. Okay. ठीक है. गोइंग कंसर्न हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि व्हेन देयर इज अ गोइंग कंसर्न इशू, सो यू विल फर्स्ट चेक कि क्या गोइंग कंसर्न इशू है या नहीं है. अगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आपकी रिपोर्ट सेम रहेगी. लेकिन अगर गोइंग कंसर्न इशू है
देन यू विल लुक फॉर मैनेजमेंट प्लान्स, कि मैनेजमेंट के प्लान्स क्या उसे खत्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर खत्म कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो ओके, ठीक है, खत्म कर रहे हैं और ओके है तो उस केस में लाइक एवरीथिंग विल बी फाइन, आप अपना ओपिनियन सेम रख सकते हो। आपको याद है गोइंग कंसर्न हमने डिस्कस करा था? हाँ याद है, याद है। ओके उसके बाद अगर जस्ट अ मिनट, ओके। okay, so going concern में like if there is no going concern doubt then your report will remain same, ठीक है, आपका ओपिनियन चेंज नहीं होगा, रिपोर्ट भी चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर गोइंग कंसर्न डाउट है और मैनेजमेंट के प्लान से वो एलिवेट भी हो रहा है, खत्म भी हो रहा है, मिटिगेट हो रहे हैं उसके इफेक्ट, सो उस केस में आप क्या कर सकते हो, यू कैन इंक्लूड एन एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, ठीक है। आप एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में गोइंग कंसर्न के बारे में बता सकते हो कि गोइंग कंसर्न डाउट है और उस रिगार्डिंग मैनेजमेंट के जो प्लान्स हैं वो मिटिगेट कर रहे हैं उस इफेक्ट को, ठीक है, और आपका ओपिनियन चेंज नहीं हो रहा, ये भी बताओगे आप, ओके। लेकिन अगर गोइंग कंसर्न डाउट है और मैनेजमेंट के प्लान्स प्रॉपर नहीं है, सो उस केस में यू विल लुक कि फिर मैनेजमेंट डिस्क्लोजर दे रही है या नहीं दे रही। बिकॉज कोई बात नहीं, अगर मैनेजमेंट के पास प्लान नहीं है लेकिन क्या प्रॉपर डिस्क्लोजर दे रखे हैं या नहीं दे रखे, तो अगर दे रखे हैं सो डेट मीन्स एवरीथिंग विल बी ओके, कि कोई आप मैनेजमेंट ने कोई गलती नहीं कर रखी, इसका मतलब उसने जो सच है वो बता रखा है डिस्क्लोजर्स में। सो उस केस में अगेन आप अपना अनक्वालिफाइड ओपिनियन रख सकते हो, लेकिन उस केस में आप उस गोइंग कंसर्न को इम्फेसिस ऑफ मैटर में ना डालकर आप एक सेपरेट पैराग्राफ ऐड कर सकते हो गोइंग कंसर्न का। डन। हाँ। लेकिन अगर डिस्क्लोजर्स भी प्रॉपर नहीं है तो फिर उस केस में देयर इज सम गैप और गैप इशू, ओके। कि जब आपके डिस्क्लोजर्स प्रॉपर नहीं है तो फिर उस केस में यू कैन गो फॉर क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन, ओके। ठीक है। समझ में आया गोइंग कंसर्न रिगार्डिंग कब इंक्लूड करना आपको अपनी उसमें रिपोर्ट में। हाँ। नेक्स्ट आता है इन फेजेस ऑफ मैटर, हमने कल डिस्कस किया था कि इन फेजेस ऑफ मैटर पैराग्राफ में बेसिकली ऑडिटर वो इश्यूज लाइक मेंशन करते हैं कि जो इश्यूज उसे सिग्निफिकेंट लगते हैं कि वो यूजर्स को पता होने चाहिए लेकिन उनकी ट्रीटमेंट मैनेजमेंट ने प्रॉपर कर रखी है, कि जो प्रॉपरली एग्जाम्पल आप दे सकते हो इसके लिए? यस, एक एग्जाम्पल जैसे जैसे कि मतलब मैनेजमेंट ने इसके लिए जैसे मैंने आपको अभी बताया गोइंग कंसर्न हाँ। डाउट है बट मैनेजमेंट ने उसे मिटिगेट कर रखा है, उसके पास प्रॉपर प्लान्स हैं, ओके। बट यू स्टिल वांट कि ये यूजर्स को पता होनी चाहिए ये चीज, तो यू कैन मेंशन इन द फेजेस ऑफ मैटर पैराग्राफ, ठीक है। ठीक है। ऐसी अगर मैनेजमेंट ने कोई जस्ट प्रिंसिपल अकाउंटिंग प्रिंसिपल चेंज किया है बट इट इज जस्टिफाइड कि उसकी प्रॉपर डिस्क्लोजर प्रॉपर ट्रीटमेंट कर रखी है फाइनेंशियल्स में, बट यू वांट कि ये यूजर्स को पता होना चाहिए, आप उसे मेंशन कर सकते हो। मतलब Okay. वो इश्यूज जो बेसिकली आपके सॉरी वो मैटर्स जो बेसिकली टोटली रिजॉल्व हैं, कि उसके ट्रीटमेंट भी प्रॉपर है, डिस्क्लोजर्स भी प्रॉपर है, लेकिन आपको वो लगते हैं कि वो इम्पोर्टेंट है कि यूजर्स को उसके बारे में पता होना चाहिए, तो यू कैन मेंशन इन द फेजेस ऑफ मैटर पैराग्राफ, ठीक है। ये बेसिकली आपके ऑडिटर के ओपिनियन को चेंज नहीं करते क्योंकि इनकी ट्रीटमेंट प्रॉपर है इन चीजों की, इन मैटर्स की, लेकिन स्टिल यू वांट कि ये चीज पता तो होनी चाहिए यूजर्स को। तो जैसे आपको गोइंग कंसर्न डाउट हो गया, डेट इज प्रॉपरली एलिवेटेड। सेकेंड बताया मैंने आपको जस्टिफाइड चेंज इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल। हाँ। इसके अलावा कोई अनसर्टेनिटी हो गई,
कोई इम्पैक्ट हो गया किसी लॉस का, जो चीज लेकिन प्रॉपरली डिस्क्लोज की गई है, कोई सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स है, कोई स्पेशल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क अगर मैनेजमेंट यूज कर रही है जो प्रॉपरली जस्टिफाइड है कि क्यों यूज कर रही है वो, या कोई प्रायर पीरियड ओपिनियन चेंज हो रहा है, तो वो आप इन फेजेस ऑफ मैटर पैराग्राफ में इंक्लूड कर सकते हो। ओके ठीक है। So when adding an emphasis of meta paragraph, the auditor should include it immediately after the auditor's basis for opinion section. So वैसे तो emphasis of meta paragraph आप मतलब कहाँ इंक्लूड कर सकते हो, बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ के जस्ट नीचे मेंशन कर सकते हो विद द हेडिंग emphasis of matter. The paragraph should clearly reference to the matter being emphasized and to where relevant disclosure did fully describe the matter can be found in the financial statement. तो basically जो भी matter है आप उस matter के बारे में बताते हो और जहां भी उसका disclosure दे रखा है उसकी reference भी देते हो उसमें. The paragraph should indicate that auditor or you have to mention कि ये इस मैटर की वजह से आपका ओपिनियन चेंज नहीं हो रहा क्योंकि ये प्रॉपरली जस्टिफाइड है. ठीक है. हाँ. So if a key audit matter section is presented, an emphasis of matter paragraph may be presented either directly before or after the key audit matter sections. ठीक है. तो अगर आपका की ऑडिट मैटर पैराग्राफ भी है तो फिर आप emphasis ऑफ मैटर पैराग्राफ की ऑडिट मैटर पैराग्राफ से ऊपर या नीचे कहीं भी मेंशन कर सकते हो. Okay. डिपेंड करते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन किस में ज्यादा सिग्निफिकेंट है, आपके emphasis ऑफ मैटर पैराग्राफ में वो इंफॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या की ऑडिट में, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट प्रायोरिटी आप उसे मेंशन कर सकते हो. देन हाँ. ऐसे ही आपके पास एक अदर मैटर पैराग्राफ होते हैं. अदर मैटर पैराग्राफ में बेसिकली क्या है कि कुछ इश्यूज जो फाइनेंशियल से रिलेटेड नहीं है लेकिन आप चाहते हो यूजर्स को पता होना चाहिए, जैसे अगर आप कोई एक से ज्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करने वाले हो, कि जैसे एक आपकी फाइनेंशियल गैप पर बेस्ड है, एक आईएफआरएस पर बेस्ड है. ठीक है. इसके अलावा कि अगर आप अपनी रिपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हो कि यू बेसिकली रिस्ट्रिक्टिंग योर रिपोर्ट की सिर्फ ये यूजर इस रिपोर्ट को यूज कर सकते हैं, तो वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो. इसके अलावा अगर आप कोई कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ऑडिट करने वाले हो और उसमें प्रायर ईयर की आप फाइनेंशियल्स को मतलब ऑडिट रिपोर्ट को रीइश्यू नहीं करने वाले, तो वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो. ठीक है. इसके अलावा आप अदर मैटर पैराग्राफ में ये इंक्लूड कर सकते हो कि जैसे कि आप एज एन ऑडिटर अगर आप विड्रॉ करना चाहते थे इस एंगेजमेंट से लेकिन स्टिल यू आर नॉट विड्रॉइंग, सो व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, यू कैन मेंशन इन योर अदर मैटर पैराग्राफ. देन सो कुछ इश्यूज आते हैं जो आपके emphasis ऑफ मैटर में इंक्लूड होते हैं और कुछ अदर मैटर पैराग्राफ में इंक्लूड होते हैं. Okay. Okay. So next is restricting the use of audit reports. So as I mentioned you कि जैसे आप अपनी रिपोर्ट को restrict भी कर सकते हो कि कुछ specified party ही उस पर rely करे. You can mention this कि अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे स्पेशल फ्रेमवर्क यूज किए गए हैं, कुछ ऐसे स्पेशल प्रिंसिपल यूज किए गए हैं कि जब कुछ पार्टीज ही समझ सकती हैं कि हर किसी के लिए वो रेलेवेंट नहीं है, तो उस केस में यू कैन रेस्ट्रिक्ट दैट यूज रिपोर्ट. ओके. तो auditor should restrict the use of report in following circumstances when subject matter or the presentation being reported on is based on measurement or disclosure criteria contained in contractual agreement or regulatory provision that are not in conformity with GAAP. कि जब कोई स्पेशल फ्रेमवर्क यूज किया गया है, an auditor report is issued as a byproduct of financial statement audit and is based on result of procedure designed to enable to express an opinion on financial statement as a whole, not to provide specific assurance on specific subject matter. So अगर आपको लग रहा है कि कुछ स्पेशल फ्रेमवर्क यूज किया गया है या आपकी रिपोर्ट कुछ लाइक कुछ स्पेसिफिक चीजों पे अश्योरेंस नहीं दे रही, सो उस केस में यू कैन रिस्ट्रिक्ट योर रिपोर्ट
From time to time, the auditor is required to issue by-product report based on the matter that arise during the audit engagement. जैसे कि कुछ अदर चीजों पर भी जैसे रिपोर्ट इशू करनी हो, लाइक रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल, रिगार्डिंग कॉम्प्लायंस, कोई सब्जेक्ट मैटर. So because of issuance of by-product report is not the primary objective of engagement, the auditor can only limit procedure directed towards the subject matter. So accordingly, because of potential for misunderstanding or misrepresentation of the limited degree of assurance associated with byproduct, suppose किस आप सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे रिपोर्ट करने वाले हो, तो उस केस में हो सकता है ना कि जो यूजर्स हैं उसे उसका स्कोप कुछ और समझ के उस पर रिलाय कर ले, तो यू कैन रेस्ट्रिक्ट द रिपोर्ट यूज ऑफ द रिपोर्ट इन दैट केस. Okay, you should inform your client also that restricted reports should not be distributed to non-specified parties. कि जो parties basically relevant नहीं है कि उनको वो report issue ना की जाए. The auditor's report that is restricted as to use could contain a separate paragraph at the end of report. Okay, जब आप restrict करते हो report को, you can mention it in separate paragraph that a statement that is intended solely for the information and use of specified party. Identification of specific party, आप उन parties ये disclaimer डाल सकते हो कि ये report इन particular parties के लिए है और वो parties कौन कौन सी हैं, और that this report is not intended to be used or intended to be or should be not be used by anyone other than the specified parties. Okay. तो ये जो सेपरेट पैराग्राफ है, हम उसे अदर मैटर पैराग्राफ्स में Yes. या एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ्स में डाल सकते हैं. हम रिस्ट्रिक्ट करने के लिए अदर मैटर पैराग्राफ में इंक्लूड कर सकते हैं. अदर मैटर पैराग्राफ बेसिकली पैराग्राफ ही है कि आप अदर मैटर से रिलेटेड एक पैराग्राफ डाल दिया आपने. ओके, ठीक है. नेक्स्ट आता है डेटिंग द रिपोर्ट. अब रिपोर्ट डेट क्या देनी है आपको. So as I already we have discussed it that the audit report should not be dated earlier than the date on which the auditor has obtained sufficient evidence. So basically जब आपको आपका last day होता है field work का, basically वो report वो date आपकी mention की जाती है. Among other things, these sufficient appropriate evidences could include evidence that the documentation have been reviewed, including disclosure have been prepared. So basically जब आपका सारा वर्क हो चुका है उसके बाद वो वाली डेट आप मेंशन करते हो. इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सब्सिक्वेंट इवेंट. हम सब्सिक्वेंट इवेंट रिगार्डिंग बात कर चुके हैं कि अब आपकी ऑडिट रिपोर्ट इशू हो चुकी है या होने वाली है और उसके बाद आपको कोई इवेंट दिखा, सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में पता चला, और वो सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में जब आपको पता चला तो यू विल चेक कि क्या उसका इम्पेक्ट हो सकता है और वो सब. तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम ड्यूअल डेट भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. ड्यूअल डेट का क्या मतलब है, या तो अब आप क्या करो, अब जैसे मान लो कि आपकी 10 मार्च तक सारी टेस्टिंग हो चुकी है और अब आप 10 मार्च को अपनी रिपोर्ट डेट मेंशन करने वाले हो, लेकिन आपको आफ्टर 15 मार्च आपको कोई सब्सिक्वेंट इवेंट पता चल गया, तो अब आप क्या करोगे. अब वो सब्सिक्वेंट इवेंट क्योंकि अब आपके लिए सिग्निफिकेंट भी है जिसको मेंशन करना जरूरी है, तो उस केस में अब आप क्या कर सकते हो एज एन ऑडिटर. अब आपकी 10 से 15 मार्च के बीच में तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही कि आप प्रोसीजर्स उसके बीच में जो चीजें हुई हैं, तो यू कैन डिसाइड कि क्या आप अपनी ऑडिट डेट को 15 तक ले जाना चाहते हो, कि डेट मीन्स कि उसके बीच में जो भी हुए हैं उसके लिए भी आप प्रोसीजर परफॉर्म करोगे और अपनी सारी एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स 15 तक ले जाओगे. ठीक है. और फिर 15 को एक पूरी रिपोर्ट इशू करने वाले हो आप. या फिर आप क्या कर सकते हो, हाँ बोलो. या फिर आप ड्यूअल डेट चूज कर सकते हो कि जैसे आपने जो पहले आप कर चुके हो, जैसे 10 तक आपने जो भी प्रोसीजर्स परफॉर्म कर दिए, लाइक फाइनल प्रोसीजर्स आपने परफॉर्म कर दिए, रिपोर्ट इशू करने वाले थे आप, तो वो वहां तक आप 10 की
10 डेट दे सकते हो, उसके बाद जो भी इशू दिखा उस स्पेसिफिक इशू की डेट आप 15 रख सकते हो कि ऑडिट रिपोर्ट में कि आपकी ऑडिट रिपोर्ट डेट ये है एक्सेप्ट फॉर दिस इशू विच इज ऑन दिस डेट। ओके, सो इसमें ठीक है। क्या होगा कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ 10 मार्च तक रहेगी, उसके बाद जो बीच में जो भी टाइम गैप आया है उसके रिगार्डिंग वो एडिशनल टेस्टिंग नहीं करेगा। फिर सिर्फ वो स्पेसिफिक जो उसे सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट दिखा है सिर्फ उसके रिगार्डिंग वो अपनी डेट चेंज कर देगा। ठीक है, ये होती है आपकी ड्यूअल डेट। एक अभी डाउट है। यस, तो द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये वो डेट है जिस दिन हम फाइल कर रहे हैं ऑडिट रिपोर्ट हमारी इशूअर कंपनी के लिए? ऑडिट रिपोर्ट डेट बेसिकली जो जो डेट आप मेंशन करके चलते हो रिपोर्ट में, और वो डेट आपकी जिस दिन आपका फील्ड वर्क पूरा खत्म हो चुका है फाइनल, वो डेट आप मेंशन करके चलते हो। मतलब जिस दिन जो हमारा ऑडिट रिपोर्ट है हम मैनेजमेंट को हैंड ओवर कर रहे हैं कि ये हमारा ओपिनियन है, ऐसा सब? वो डेट जिसपे आपका फील्ड वर्क कंप्लीट हो चुका है कि जब आपने लाइक फाइनल सारी चीजें कंप्लीट कर चुके हो आप, उस वो डेट आपकी मेंशन रहती है उस पे। और जिस दिन ये डे मतलब ऑडिट रिपोर्ट इशू होता है वो डेट? वो नहीं, जब आपका फील्ड वर्क कंप्लीट होगा, क्योंकि उसके बाद फील्ड वर्क कंप्लीट होने के बाद आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना कि उसके बाद जो भी प्रोसीजर्स हुए, तो फिर वो मिसलीडिंग हो जाएगी कि आपने मान लो 10 मार्च तक टेस्टिंग की है और आप 15 को रिपोर्ट हैंड ओवर करने वाले हो, तो आप 15 डेट मेंशन कर रहे हो, तो इसका मतलब यूजर्स तो यही समझेंगे कि आपने 15 तक सारा मतलब सारी चीजें क्लियर हैं 15 तक। सो ठीक है। इसलिए जिस दिन आपका लास्ट फील्ड वर्क कंप्लीट हो चुका है वो डेट आप मेंशन करके चलते हो जनरली। ओके। ठीक है, ड्यूल डेट कब चूज कर सकते हो, जब कोई सब्सिक्वेंट इवेंट दिखा आपको और जिसे आप समझा। मेंशन करना चाहते हो। अच्छा, अब आती है आपकी इश्यूअर्स के लिए। सो इश्यूअर्स के लिए क्या है, बेसिकली आपका टाइटल यहाँ क्या चेंज हो जाएगा सबसे पहले, रिपोर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट रजिस्टर्ड पब्लिक अकाउंटिंग फर्म। सो यहाँ पर वहां पर आपका नॉन इश्यूअर्स के केस में टाइटल क्या रहता था, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। यहाँ आपका टाइटल मेंशन रहेगा कि रिपोर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट रजिस्टर्ड पब्लिक अकाउंटिंग फर्म। ओके, ओके। देन एड्रेस ही सेम रहेगा, आप जिसको एड्रेस कर रहे हो बेसिकली योर क्लाइंट, योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, योर टीसीडब्ल्यूजी। ठीक है। नेक्स्ट आपका ओपिनियन पैराग्राफ आएगा, ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर हाँ। यू विल मेंशन कि कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप ऑडिट करने वाले हो और कौन कौन सी पीरियड की ऑडिट करने वाले हो। देन हाँ। उसके साथ में ही आपका ओपिनियन आ जाएगा जैसे आप उसमें मेंशन करते थे। हम्म। ओके। हाँ। उसके बाद आएगा आपका बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ। बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या इंक्लूड करते हो आप, बेसिकली इसी के अंदर आपकी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन हो जाती है। बेसिस फॉर ओपिनियन में आप बेसिकली जो भी आप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो भी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो मेंशन करके चलते हो कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ऑडिट करना, और आप एक पब्लिक अकाउंटिंग फर्म हो जो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, उसके अलावा आपने अपनी ऑडिट के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग फॉलो की है, आपने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन किया है, आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं यू विल मेंशन हियर। डन। क्या हाँ। डिफरेंस है आपका ओपिनियन सेक्शन में, अगेन आपकी जो भी ऑडिट के पीरियड है और ना जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आप उसे इंक्लूड करोगे, अपना ओपिनियन इंक्लूड करोगे। बेसिस फॉर ओपिनियन में आपकी मैनेजमेंट और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी यहाँ पर। ओके।
ठीक है, इसके बाद क्रिटिकल ऑडिट मैटर्स, ये पैराग्राफ इंक्लूड करना मैंडेटरी है इन केस ऑफ नॉन इशुअर्स। ओके, जैसे आप की ऑडिट मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करते थे नॉन इशुअर्स के केस में, यहाँ पर आपका क्रिटिकल बोल दोगे बस उसे, क्रिटिकल ऑडिट मैटर। और ये Yeah. पैराग्राफ यहाँ पर मैंडेटरी होता है, वहां पर रेलेवेंट हो तभी इंक्लूड करते हैं, अदरवाइज आपके इशुअर के केस में ये इंक्लूड करना इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे क्रिटिकल तो इफ एप्लीकेबल लिखा हुआ है। एप्लीकेबल का क्या मतलब है कि अगर आपके क्रिटिकल ऑडिट मैटर हैं तो आप इसमें एक्सप्लेन कर दोगे, नहीं है तो आपको स्टिल पैराग्राफ इंक्लूड करना पड़ेगा और उसमें आप मेंशन कर दोगे कि आपको कोई भी क्रिटिकल ऑडिट मैटर्स नहीं मिले। ठीक है। हाँ, बस इसमें और कुछ भी आपकी इंक्लूड नहीं होती, कोई मैनेजमेंट ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेपरेटली इंक्लूड नहीं होती, क्योंकि आप इससे ऑलरेडी इसमें मेंशन कर चुके हो। ओके, इसके हाँ। अलावा यहाँ पर एडिशनल आपको मेंशन करना होता है कि आप कितने सालों से सर्व कर रहे हो उस कंपनी को। ठीक ओके। है, कि आप मान लो 2 ईयर से उस कंपनी को की ऑडिट कर रहे हो, 3 ईयर से, तो जो भी जिस भी ईयर से आप ऑडिट कर रहे हो आप उसे इंक्लूड करोगे। ओके, एक और क्वेश्चन। एक अगर इश्योर कंपनी का हम ऑडिट कर रहे हैं तो आफ्टर एवरी 7 years हमें मतलब ऑडिटर चेंज होता है, राइट? और इश्योर के लिए 5 years आफ्टर। और नॉन इश्योर के लिए? नॉन इश्योर के लिए कुछ ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इश्योर के केस में बेसिकली आपका ऑडिट पार्टनर चेंज होते हैं, मतलब जो ऑडिट टीम होती है वो चेंज होती है, आप कंपनी चेंज करने की फर्म चेंज करने की जरूरत नहीं है बेसिकली। एक्चुअली फॉर्म चेंज होती है शायद से, तो ऑडिट पार्टनर रोटेशन होता है, फर्म चेंज नहीं होती। ओके। आफ्टर एवरी 5 ईयर आपका जो लीड ऑडिट पार्टनर होता है या कॉन्करिंग रिव्यू पार्टनर होता है उसको हाँ। रोटेट करना जरूरी होता है, मतलब उसे चेंज करना जरूरी होता है, आपकी फर्म रोटेशन नहीं जरूरी। सॉक्स एक्ट में ये दिया हुआ है, आप उसे एक बार पढ़ना। ठीक है। ठीक है, ये अगेन आपका मेंशन है कि आपकी रिपोर्ट में क्या क्या मेंशन होता है। एड्रेस सी, ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस, टेन्योर, मैनेजमेंट रिपोर्ट। ओके, सो सबसे पहले आपकी ऑडिट रिपोर्ट में आपकी ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन योर बेसिस फॉर ओपिनियन एंड यू हैव टू इंक्लूड योर क्रिटिकल ऑडिट मैटर पैराग्राफ। एड्रेसी क्या होता है कि जिसको आपकी रिपोर्ट एड्रेस्ड हो रही है, सो इट इज बेसिकली शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और इक्विवेलेंट फॉर द कंपनीज। ऑडिटर रिपोर्ट could be addressed to in addition to other addressee, the plan administrator, plan participant for benefit plan, the directors and equity owner, the trustee and unit holder of the for investment companies organized as trust। सिर्फ इतना ध्यान रखना कि आपकी ऑडिट रिपोर्ट चाहे इश्योर की है चाहे नॉन इश्योर की, आपकी मैनेजमेंट को एड्रेस नहीं होती, क्योंकि मैनेजमेंट ही प्रिपेयर कर रही है, तो आप मैनेजमेंट को नहीं देते वो रिपोर्ट। आपकी वो रिपोर्ट किसको एड्रेस करती है? जो भी हायर लेवल के पीपल्स है, लाइक TCWD या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट, ऑडिटर इंडिपेंडेंस। सो इट रिक्वायर अ स्टेटमेंट इन बेसिस फॉर ओपिनियन। आप बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ में मेंशन करके चलते हो डेट यू आर इंडिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू द कंपनी। जो भी आपकी क्लाइंट है उसके रिगार्डिंग आप इंडिपेंडेंट हो। क्लियर? हाँ। ऑडिट टेन्योर मींस यू हैव टू इंक्लूड कि कब से आप इस कंपनी की ऑडिट कर रहे हो। द डिस्क्लोजर ऑफ टेन्योर शुड रिफ्लेक्ट द एंटायर रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड ऑडिटर, including the tenure of predecessor accounting firm and engagement by predecessor of the company under the audit. So in determining the year the auditor begins serving consecutively,
आपको कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स मेंशन करने होते हैं। ऐसा नहीं कि आपने 5 साल पहले एक बार की थी और अब दोबारा कर रहे हो तो आप वो 5 साल से इंक्लूड करो, नहीं। अगर आप कॉन्जिक्यूटिवली सर्व कर रहे हो तो यू हैव टू मेंशन योर कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ द ऑडिटर साइन द एंगेजमेंट इन 2018 for the year 2016, 17, 18, the auditor should state in 2018 as the auditor began consecutively serving as the company's auditor. Okay. हाँ. नेक्स्ट आता है आपका मैनेजमेंट रिपोर्ट ऑन आईसीएफआर। सो एज आई मेंशन कि जब आपकी इश्योर्स की ऑडिट होती है तो आईसीएफआर पे ओपिनियन देना जरूरी होता है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आईसीएफआर रिपोर्ट को इसके साथ कंबाइन भी कर सकते हो और सेपरेटली भी इंक्लूड कर सकते हो। देन आई मीन टू से कि जब आप यहाँ ओपिनियन दे रहे हो, इस ओपिनियन के साथ आप यहाँ पर इंक्लूड कर दो अपनी इंटरनल कंट्रोल का ओपिनियन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में मेंशन कर दो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैनेजमेंट और आपकी डेट सीट। लेकिन अगर आप सेपरेटली आईसीएफआर पे रिपोर्ट देना चाहते हो तो आप सेपरेट भी इंक्लूड कर सकते हो। ओके. उसके बाद आते हैं आपके एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ आएंगे आपके इसके अंदर और इम्फेसिस पैराग्राफ आएंगे। सो क्या है अब ये, जैसे आपकी नॉन इश्योर्स के केस में आपके इम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ और अदर मैटर पैराग्राफ थे, यही हाँ. थे वर्ड्स हाँ. का ध्यान रखना। वहां इम्फेसिस ऑफ मैटर और अदर मैटर पैराग्राफ थे। यहाँ पर अब आपका क्या आ जाएगा, एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ और इम्फेसिस पैराग्राफ। ओके. ठीक है, इम्फेसिस हाँ. पैराग्राफ। ओके, सो आपकी इम्फेसिस पैराग्राफ में बेसिकली आपकी सिर्फ एक ही चीज जाती है। एक सेकेंड में आपको बताती हूँ। हाँ, इम्फेसिस पैराग्राफ में सिर्फ आप अनसर्टेनिटी या कुछ अदर सर्कमस्टांसेस रिलेटेड बताते हो, बाकी आपकी चीजें एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ में डिस्क्राइब होती हैं। जैसे आपका गोइंग कंसर्न इशू है, कोई आप रेफर करना चाहते हो किसी को अपनी रिपोर्ट में, चेंज कोई आपकी प्रायर पीरियड ओपिनियन चेंज हो रहा है, कोई जस्टिफाइड चेंज इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है जो प्रीवियसली इशूड रिपोर्ट में मेंशन की गई थी और इस बार करेक्ट कर दी गई है मैनेजमेंट ने, कोई कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई इशू है, कोई आपकी सिलेक्टेड क्वार्टरली फाइनेंशियल डेटा हो गया जो रिव्यू किया है, कोई सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन हो गई या कोई अदर इंफॉर्मेशन डेट इज मटेरियली इनकंसिस्टेंट लेकिन जिसका जस्टिफिकेशन प्रॉपर है, सो आप उसे एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ में मेंशन कर सकते हो। जो आपके ओपिनियन को बेसिकली अफेक्ट नहीं करती चीजें, लेकिन आपको लगता है कि ये यूजर्स को पता होनी चाहिए, तो आप उसे इंक्लूड कर सकते हो इसमें। ओके. एक और क्वेश्चन है कि अगर इफ मैंने कोई स्पेशलिस्ट को अपॉइंट किया था, कुछ वो वेरीफाई करने प्रोसीजर्स करने, Yes. तो मैं अगर इफ वो ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन कर रही हूँ तो मैं किधर मेंशन करूंगी उसको? ओके, तो जब आप किसी को रेफरेंस देना चाहते हो तो आप इसमें एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ में मेंशन करते हो। ओके. और नॉन इशूअर के लिए? वो फिर आपका एम्फेसिस में चला जाएगा ठीक है. या अदर मैटर में। ओके. इतना क्लियर हुआ? हाँ, क्लियर हुआ. ओके, सो एज आई टोल्ड यू कि जब आपने किसी को रेफरेंस देना हो तो आप इंक्लूड कर सकते हो इसे। क्रिटिकल ऑडिट मैटर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो मैटर्स आपके सिग्निफिकेंट हैं। अच्छा, क्रिटिकल ऑडिट मैटर पैराग्राफ, क्रिटिकल ऑडिट मैटर के लिए स्पेसिफिक डेफिनेशंस दी जाती है इश्यूर के केस में कि क्रिटिकल ऑडिट मैटर डिसाइड करना हो तो सबसे पहले यू विल चेक कि आपने जो भी कम्युनिकेशन की है ऑडिट कमेटी से, क्योंकि आप ऑडिट कमेटी से डिस्कस करते हो ना सिग्निफिकेंट चीजें। हाँ. तो सबसे पहले यू विल चेक कि आपने जो भी आपने कम्युनिकेशन किया ऑडिट कमेटी से, आप वो कम्युनिकेशन उठाओगे, उसमें चेक करोगे कि क्या कोई कम्युनिकेशन अकाउंट या डिस्क्लोजर रिलेटेड है।
जिसका मटेरियल इम्पैक्ट है फाइनेंशियल्स पे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेक द कम्युनिकेशन दैट इज डन विद ऑडिट कमेटी। फिर उस कम्युनिकेशन में कुछ कम्युनिकेशन अगर आपके अकाउंट या डिस्क्लोजर से रिलेटेड है जिसका मटेरियल इम्पैक्ट है, ठीक है, और जिसमें ऑडिटर की चैलेंजिंग सब्जेक्टिव या कॉम्प्लेक्स जजमेंट यूज हुई है, जो मैटर्स चैलेंजिंग हैं, सब्जेक्टिव हैं और जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑडिटर जजमेंट यूज हुई है, सो वो आपके क्रिटिकल ऑडिट मैटर कहलाते हैं। ओके। ठीक है, हाँ। क्रिटिकल ऑडिट मैटर जो भी आपने कम्युनिकेशन ऑडिट कमेटी से की है, उस कम्युनिकेशन में जो मैटर ऐसे हैं जो अकाउंट या डिस्क्लोजर से रिलेटेड है और जिनका मटेरियल इम्पैक्ट है और जिसके अंदर ऑडिटर की जजमेंट यूज हुई है और वो मैटर आपके सब्जेक्टिव भी हैं, चैलेंजिंग भी हैं, तो वो आपको इंक्लूड करने होते हैं किसमें, कि क्रिटिकल ऑडिट मैटर में। और ये मैंडेटरी होता है इन केस ऑफ इशुअर्स। Identifying critical audit matter will require auditor to consider the risk assessment areas, involve the use of significant judgment estimation, and significant unusual transaction, nature and extent of audit evidence, and effort to address the critical audit matter. The auditor report must identify the critical audit matter, describe the principal consideration that lead the auditor to determine that the matter is a critical audit matter and describe how it is addressed in the audit, and make reference to the relevant financial statement, account, and disclosures. So, if the auditor determines that there are no critical audit matters, the auditor should state in the auditor's report. तो अगर कोई critical audit matter नहीं मिलते आपको तो आपको मेंशन करना होगा कि that there are no critical audit matters. ओके। Okay? हाँ। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? यस। इंटरनल कंट्रोल फिर हम कल डिस्कस करते हैं कि इंटरनल कंट्रोल्स पे कैसे रिपोर्टिंग की जाती है आपकी। ठीक है। ओके, सो ये थी आपकी स्टैंडर्ड अनमॉडिफाइड रिपोर्ट इन केस ऑफ इश्यूअर्स। ओके। इसके बाद आपकी यही रिपोर्ट मॉडिफाइड हो सकती है जब आप अपना ओपिनियन चेंज करोगे, लाइक अपना ओपिनियन आप क्वालिफाइड रख रहे हो, एडवर्स रख रहे हो, सो उस केस में योर रिपोर्ट विल चेंज अकॉर्डिंगली। हाँ। ओके, वो आपका अभी दूर है वैसे, चलो फिर वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, डन। ओके, यहाँ तक रिवाइज कर लेना, कोई डाउट हो तो यू Yes. कैन आस्क मी। डन डन। ठीक है। ओके, बाय, गुड नाइट। ओके, बाय, गुड नाइट।